with a new opportunity. We should not miss it. We should wake up and enjoy the sun. I am Alankrita Singh from class 4B, wishing you all a very cheerful morning. Prayer purifies our mind and soul. So let's start our day with prayer of Supreme Authority. The heavens are blue, proclaiming to you the glory of God the Creator. At sunset or night they are beautiful sight. Yes, they offer the glory of God. The heavens are blue, proclaiming to you the glory of God the Creator. At sunset or night they are beautiful sight. Yes, they offer the glory of God. O author of beauty, God on high, it is for you that is I. O author of beauty, God on high, it is for you that is I. As long as I live, my love I shall give to you, Lord my God most high. And all my days I will sing to you praise. I will adore my God most high. O author of beauty, God on high, it is for you that is I. O author of beauty, God on high, it is for you that is I. The surges of seas, the wind in the trees, breathe the music of God in nature. In songs of the bird, nature witnesses heard. Yes, it's offer the glory of God. O author of beauty, God on high, it is for you that is I. O author of beauty, God on high, it is for you that is I. The heavens are blue, proclaiming to you the glory of God the Creator. At sunset or night they are beautiful sight. Yes, they offer the glory of God. Yes, they sing for the glory of God. Yes, they sing for the glory of God. As a citizen or as a social being of India, we had some duties towards our country. Please instill a sense of patriotism amongst us. So let's be ready for pledge. India is my country. All Indians are my brothers and sisters. I love my country and I am proud of its rich and varied heritage. I shall always strive to be worthy of it. I shall give respect to my parents, teachers, and all elders, and treat everyone with courtesy. To my country and my people, I pledge my devotion. In their well-being and prosperity alone lies my happiness. Jai Hind. 1785 में आज के दिन 1774 से 1785 तक गवर्नर जनरल रहे वॉरेन हेस्टिंग्स ने भारत छोड़ा। 1872 में आज के दिन भारत के वायसराय रहे लॉर्ड मेयो की अंडमान द्वीप में शेर अली नामक एक कैदी ने हत्या कर दी।
1897 में आज ही के दिन भारत के तीसरे राष्ट्रपति जाकिर हुसैन का आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में जन्म हुआ। महज 23 वर्ष की उम्र में जाकिर हुसैन जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की स्थापना दल के सदस्य बने थे। वर्ष 1963 में जाकिर हुसैन को भारत रत्न और वर्ष 1954 में पद्म विभूषण सम्मान से नवाजा गया था। 1909 में आज के दिन यूरोपीय देश फ्रांस और जर्मनी के बीच मोरक्को संधि पर हस्ताक्षर किए गए। 1943 में आज के दिन स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जर्मनी के किल से एक नौका के जरिए जापान के लिए रवाना हुए। 1971 में आज के दिन दक्षिणी वियतनामी सेना ने लाओस पर हमला किया। 1971 में आज के दिन महान लेखक और शिक्षाविद के एम मुंशी का बंबई में निधन हुआ। 1979 में आज के दिन अमेरिका ने नेवादा में परमाणु परीक्षण किया। 1986 में आज के दिन दिल्ली हवाई अड्डे पर पहली बार प्रीपेड टैक्सी सेवा शुरू की गई। 1994 में आज के दिन क्रिकेटर कपिल देव ने टेस्ट मैचों में 432 विकेट लेकर रिचर्ड हेडली के सबसे अधिक विकेट लेने के विश्व रिकॉर्ड को ध्वस्त किया। 2002 में आज के दिन अमेरिका के सॉल्ट लेक सिटी में 19वें शीतकालीन ओलंपिक खेल शुरू हुए। हेलो गांधी जी, महात्मा गांधी जी, बापू जी, father of nation. He was a great teacher. He was a great leader. He is our babu. He is role model. गांधी जी, महात्मा गांधी जी, बापू जी, father of nation. He was a great teacher. He was a great leader. He is our babu. He is role model. Thank you. Bye. A small positive thought can change our life. So to brighten our morning assembly, I would like to call Rajat Misra for thought of the day. Good morning to you all. Here I am, Rajat Misra, stand in front of you all on the behalf of Ramana with thought of the day. Success comes from the way you act. The way you act comes from the way you think and feel. Therefore, to become more successful, you must first change something within yourself. Thank you and have a cheerful day. Hello everyone, this is Paditi Barnwal. I study in class 30 and my topic is story. So let's start. एक गांव में एक मूर्तिकार रहता था। उसे एक दिन मूर्ति बनाने के लिए पत्थरों की आवश्यकता पड़ी। वो जंगल के लिए निकल गया और इधर उधर देखने लगा। उसे एक पत्थर दिखा और वो उसे उठाया और बोला, ये तो मूर्ति बनाने के लिए बिल्कुल सही है, और अपनी गाड़ी में रख लेता है। कुछ दूर और आगे निकलता है, तुझे एक और पत्थर दिखता है। वो उसे भी उठा लेता है और अपनी गाड़ी में रख लेता है और अपने घर के लिए निकल जाता है। वो जब पत्थर को चोट पहुंचाने लगता है तो पत्थर में से आवाज़ आती है। पत्थर बोलता है, रुको रुको रुको, कृपया करके रुको। तो मूर्तिकार इधर उधर देखने लगता है और फिर से वो मारने लगता है। तो फिर से पत्थर में से आवाज़ आती है। वो फिर से बोलता है, रुको रुको रुको, मुझे मत मारो, रुको। तो मूर्तिकार देखने लगता है पत्थर को। तो पत्थर बोलता है, मुझे मत मारो, मुझे हथौड़े से डर लगता है, मुझे मत मारो। तो वो मूर्तिकार को उस पर दया आ गई और वो उसे रख के दूसरा पत्थर ले आता है तो उसे मारने लगता है। उसमें से कोई आवाज़ नहीं आती है और फिर मूर्ति बन जाती है। कुछ दिन बाद गांव के कुछ लोग आते हैं और बोलते हैं, अरे भाई मूर्ति बन गई। तो बोलते हैं, हाँ, मैं तो 2 दिन पहले ही मूर्ति को बना के रखा था। तो बोलता है, अरे वाह मोहन, चलो अब इसकी स्थापना करते हैं। तो
सब लोग चलने लगते हैं और ये मूर्तिकार बोलता है, अरे रुको रुको, नारियल फोड़ने के लिए भी तो एक पत्थर चाहिए। तो बोलता है हाँ हाँ रुक लेते हैं हम लोग। तो फिर वो इधर उधर मूर्तिकार देखता है और उससे वो पत्थर दिखाई देता है जिसने बोला था मुझे हथौड़े से डर लगता है, और वो उसे लेके चलता है। तो रास्ते भर वो आवाज करता रहता है, अरे तुम लोग कहाँ मुझे ले जा रहे हो, मुझे नहीं जाना है, मुझे कठिन परिस्थितियों से डर लगता है, मुझे मत ले जाओ। तो कोई इसकी बात नहीं सुनता है और मंदिर पे चला जाता है। तो फिर सब लोग मूर्ति के ऊपर दूध डालने लगते हैं, फूलों की बारिश करते हैं। तो फिर ये सब देखते हुए पत्थर देखता रहता है और बोलता है उससे, अरे वाह पत्थर, तुम्हारी तो बहुत सेवा हो रही है, तुम्हारे ऊपर तो दूध चढ़ाया जा रहा है और फिर उसके बाद तुम्हारे ऊपर तो फूलों की बारिश भी हो रही है और मेरे ऊपर तो सब नारियल फोड़ रहे हैं। तो वो एक आदमी आता है और उसके ऊपर कस कस के नारियल फोड़ने लगता है। तो पत्थर बोलता है, अरे क्या कर रहे हो तुम लोग, मेरे ऊपर मत फोड़ो नारियल, मत फोड़ो। तो एक और आदमी आता है, उसके ऊपर फिर पत्थर फोड़ने लगता है जोर जोर से। तो ये बोलते हैं, अरे मूर्ख लोग क्या कर रहे हो, मेरे ऊपर मत फोड़ो नारियल। तो फिर जब सब लोग फोड़ चुकते हैं तो मूर्ति बना हुआ पत्थर हंसने लगता है, हा हा। तो पत्थर बोलता है, हाँ हाँ तुम तो हंसोगे ही, तुम्हारी इतनी सेवा जो हो रही है। तो पत्थर बोलता है मूर्ति बना हुआ, अगर तुम उस दिन पहला प्रहार सह लिए होते तो तुम्हें आज ये नहीं करना पड़ता, तुम आज मेरी जगह होते और तुम्हारी भी सेवा हो रही होती। तो पत्थर को अपनी गलती का एहसास होता है और बोलता है, हाँ भगवान मुझसे गलती हो गई, मैं आपसे वचन एक मांगता हूँ, आपसे मैं एक कभी भी पहला प्रहार से घबराऊंगा नहीं, मैं पहला प्रहार सह लूंगा, फिर बाद में तो मुझे सब सही ही कर रहेगा। तो फिर एक आदमी आता है, पत्थर के ऊपर नारियल फोड़ता है। तो पत्थर अपनी आँख बंद कर लेता है और बोलता है, जय श्री राम, जय श्री राम, और वो नारियल फूट जाता है। और जब वो अपनी आंखें खोलता है तो देखता है नारियल फूट गया, उस बार उसको कोई दर्द नहीं हुआ। बोलता है मूर्ति बने हुए पत्थर से, प्रभु इस बार तो मुझे कोई दर्द नहीं हुआ, आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए, अपनी शरण में ले लीजिए, मैं आपकी शरण में आने चाहता हूँ, थैंक यू। Thank you.